Good evening, guys. So, now in this class, we all will start in the first chapter of biology, and that is life process. Life process. This means all the living organism, and process means all these activities. Okay, जो भी ऑर्गेनिज्म जिस भी तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, दैट इज योर लाइफ प्रोसेस. गॉट इट? Yes. So first of all, we are here to talk about all the living and non-living organism. Living and non-living organism. तो ऐसे जितने भी ऑर्गेनिजम्स ओके जो ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग एंड breathing as well as your respiration is not at all same. I want to tell you कि ये दोनों चीज़ बिल्कुल भी सेम नहीं है. ओके यस, ब्रीदिंग मतलब we used to inhale, we used to exhale. We inhale oxygen, right? We inhale O2 and we exhale CO2, right? This process is known as breathing. But when we talk about your respiration, it is not at all same. So in the process of respiration, what happens is your glucose C6 H12 and O6, this is your glucose, breaks down and gives us energy. तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं respiration. Got it? Sure. Okay, now again we have to talk about two terms, that is your movement and locomotion. Okay, movement and locomotion. So these two terms are also not same. Okay, when we talk about movement, it means that if we are standing at a particular place and we are moving, it means देखो yes, if we are standing at a particular place और हम अपने हाथ पैर ऐसे हिला रहे हैं बट हम एक ही फिक्स्ड प्लेस पे खड़े हैं. ओके, दैट इज योर मूवमेंट. ओके yes, but when we talk about locomotion, it means कि we are changing our place from point A, we are going to point B. Okay, this is your locomotion. अगर हम एक जगह खड़े होके कुछ भी हाथ पैर हिला रहे हैं, that is your movement. But when we are passing from point A to B, from B to C, that is your locomotion. Is that clear? Sure. Okay, now we have to talk about characters of a living organisms. Okay, means what are all the qualities of a living organism that they perform. Clear? So basically the qualities of this organism we can learn by the name of old grandma, that is Gren. Okay, this stands for M stands for movement. Okay, when we are standing at a particular place and we are moving our body, एक ही जगह पे खड़े होके कुछ भी कर रहे हैं, okay, that is your movement. Second, R stands for respiration. Again I'm saying glucose जो होता है जब वो break down होता है and it gives us energy, that is your respiration. Okay, then your third is sensitivity. Okay, this is basically okay. Now whenever we touch something hot things, okay, कुछ गर्म चीज़ को अगर हम छू देते हैं, राइट, वी गेट अ सेंसेशन कि सुनो तुमने कोई गर्म चीज़ को छुई है, अपना हाथ हटा लो, राइट.
दैट इज़ योर सेंसेशन बेसिकली, ओके। और अगर कोई हमें मारता है, ठीक है, तो उस समय भी सेंसेशन मिलता है कि तुम्हें बहुत तेज़ मार पड़ी है, ओके। दिस इज़ योर सेंसिटिविटी। एक बेसिक सा एग्जाम्पल से क्लियर किया, राइट। देन वी आर हैविंग जी। जी स्टैंड्स फॉर ग्रोथ। भाई अगर कोई ऑर्गेनिज्म अलाइव है उसके बॉडी में ग्रोथ होगा, बट एट अ पर्टिकुलर स्टेज, till a particular stage. If that person is beyond that stage, then this growth will not be there, right? Then R stands for R stands for reproduction. So reproduction is a process जब कोई एक parent सेम तरह का ऑफस्प्रिंग को बर्थ देता है, राइट। काउ विल ऑलवेज गिव बर्थ टू कैफ ओनली, राइट। काउ कोई बेबी को बर्थ नहीं देगी, राइट। तो काउ खुद की तरह के बच्चे को बर्थ देती है, राइट। ये सो दैट इज योर रिप्रोडक्शन। देन ई स्टैंड्स फॉर excretion. Now again there is a lot of confusion between excretion and your egestion. First of all, these two terms are not same. If you think कि ये जो process होता है कि when we remove the waste, all those solid waste, that is your excretion, so the answer is a big no. It's not at all, okay. Excretion और egestion सेम नहीं होता है। जो हम बात कर रहे हैं वो इसकी बात कर रहे हैं, जो सॉलिड वेस्ट, जो अनअब्जॉर्ब फूड, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जब वो हम अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं ईजेशन, ओके। जो सॉलिड वेस्ट हम रिमूव करते हैं, जो भी अनअब्जॉर्ब फूड हम अपने बॉडी से रिमूव करते हैं, दैट इज़ योर ईजेशन. योर excretion is not that, okay. Excretion is what? Excretion is basically the process of removal of metabolic waste. अगर कोई metabolic reaction हो रहा है, ये क्या होता है? we will talk about that as well, okay. First of all ये बात कर लेते कि क्या होता है, ठीक है. The process of removal of metabolic waste. तो अगर कोई metabolic reaction में waste वो हो रहा है, रिमूव हो रहा है, उस प्रोसेस को बोलते हैं excretion. तो these two terms are not same, okay. So don't think that these two terms are same. नहीं, okay. Yes. Then GRE हो गया. The last is your N. It is your nutrition, okay. Yes. Now we have to move forward with the chapter and we have to know that what is this life process. इसकी definition क्या होती है, right? So very easy peasy definition is there. First of all I'll write it. Yes. So basic, all the basic and the essential. तो जितनी भी बेसिक और जितनी भी इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़, ठीक है, परफॉर्म करते हैं हम लोग, ठीक है, जो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी बेसिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, वाई? टू सस्टेन एंड मेंटेन लाइफ. ज़िंदा रहने के लिए जो भी बेसिक से बेसिक एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं, दैट इज़ योर लाइफ प्रोसेस, ओके. नाउ ये एक्टिविटीज़ हैं क्या, राइट? सो देयर आर बेसिकली 4 एक्टिविटीज़. क्लियर? फर्स्ट इज़ योर न्यूट्रिशन. Nutrition is what now? Nutrition is process of deriving, or we can say process of
Yes, process of obtaining and the process of obtaining, जिस तरह से हम कोई फूड को ऑप्टेन करते हैं, वी आर यूटिलाइजिंग, राइट, दैट इज ओनली योर न्यूट्रिशन. Clear? Hope till here it's crystal clear. Sure? Okay. The second process is your respiration. So it is a process of breaking down the food to produce energy. जब food को हम तोड़ते हैं, why? So that it produce energy. जब खाना टूट के एनर्जी प्रोड्यूस, जब फूड ब्रेक डाउन होके एनर्जी देता है, राइट, दिस प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन. हमने इसके बारे में बात कर चुकी है, राइट. द थर्ड is your transportation. Transportation is what now? Transportation, it is a process of transporting useful and non-useful substance from one part to the other. जितने भी इम्पॉर्टेंट या फिर बेकार से बेकार जो भी चीज़ें हैं, जब वो एक पार्ट ऑफ बॉडी से सेकेंड पार्ट ऑफ बॉडी तक पहुंचती है, ट्रांसपोर्ट होती है, उसी प्रोसेस को वी कॉल एज ट्रांसपोर्टेशन. इफ़ ट्रांसपोर्टेशन विल नॉट बी देयर, वी विल नॉट बी देयर. ओके, सो these activities are very very important to sustain the life. Okay, the last is your excretion. I already told you, process of removal of all the metabolic waste. Okay, जो भी metabolic reaction में जो waste बनते हैं, जब वो remove होते, that process is your excretion. Got it? Are you sure? Okay. Now, as I've used the term metabolic reaction, metabolic waste, what are they actually? So metabolic reaction, ठीक है, आगे वो है. Yes, so it's basically जितने भी chemical reactions, जो भी केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, राइट, दैट केमिकल रिएक्शन इज योर मेटाबॉलिक रिएक्शन. उसी को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन. ऑल द केमिकल रिएक्शंस, सो all the reactions, right, that takes place in the body is your is your metabolic reactions. Okay, yes. Now this metabolic reactions are also of two types. Okay, so they are also of two types, that is your catabolism and anabolism. What are they actually? कट, ठीक है, थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा. ओके, कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? व्हेन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, जब कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस छोटे छोटे पार्टिकल्स में, सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होता है, दैट प्रोसेस इज योर कैटाबॉलिज्म. एंड इन दिस प्रोसेस दैट विल रिलीज द एनर्जी, वो एनर्जी को बाहर करेगा. ओके, yes. Now what do you mean by anabolism? In this process basically, or smaller and smaller substance, right, they are combined and they form a big
कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, छोटे 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 सब्सटेंस एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा सब्सटेंस बनाते हैं, एंड इन दैट पर्टिकुलर केस दे विल यूज द एनर्जी. सो डोंट बी बी केयरफुल, यहाँ पे वो एनर्जी को अपने बॉडी से रिलीज करेंगे, एंड ओवर हियर दे विल यूज द एनर्जी. ओके, गॉट इट? ओके, नाउ hope till here it is crystal clear, right? Yes. Now a very genuine सा थिंग जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ने भी नहीं जा रहे हैं, बेसिकली हम बस उसके बारे में बात करेंगे. ओके, एग्जाम्पल कि ये कोई एक पर्सन है, ठीक है? ओके, ये कोई एक पर्सन है. नाउ अब बताओ ये पर्सन ऑक्सीजन कहाँ से लेगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से रिमूव करेगा? ऑब्वियसली फ्रॉम नोज से ही तो करेगा, राइट. तो यहाँ से वो ऑक्सीजन को अपने अंदर डालेगा और CO2 को बाहर निकालेगा, राइट? हाँ, सिंपल. व्हेन वी टॉक अबाउट प्लांट्स, फॉर एग्जांपल दिस इज गंदी ड्राइंग, ये कोई प्लांट है, ठीक है? दिस इज़ अ प्लांट. इन दिस केस टेल मी व्हाट विल हैपन, मतलब कि ऑक्सीजन प्लांट के अंदर कैसे जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर आएगा? वेरी नॉर्मल सा थिंग. प्लांट में स्टोमेटाज होते हैं, राइट? स्टोमेटा होते हैं, छोटे 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 टाइनी पोर्स होते हैं. इसके थ्रू क्या होता है? ये प्लांट ऑक्सीजन को इनहेल करता है और CO2 को निकालता है. एंड मैनी पीपल हैव दिस सिली सा कन्फ्यूजन दैट है प्लांट्स ऑक्सीजन को लेता है. यस, ओके, प्लांट भी हम लोग की तरह ही होता है, ठीक है? प्लांट ऑल्सो टेक ऑक्सीजन एंड इट गिव्स आउट carbon dioxide, but when it has the process of photosynthesis, right, in that case plant uses carbon dioxide, that's all. Got it? Yes. And when we talk about single celled organisms, your amoeba, okay, इसके अंदर wait a minute. So this single celled organisms के single cell organism में diffusion की प्रोसेस होती है, diffusion होता है. Okay, now a simple question, that is what do you mean by diffusion and osmosis? All these things we have already studied in class 9th. Just we have to brush up the concept, that's all. Diffusion में क्या होता है? Diffusion में solid, liquid, gas सबका you can say ट्रांसफ़र होता है, बट द थिंग इज गैस का ज़्यादा होता है, ठीक है? तो दैट इज़ योर डिफ्यूशन. और कैसे होता है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है, ठीक है? लोअर कंसंट्रेशन में. नाउ यस, वन मोर थिंग, एग्जाम्पल करते हैं बात. ये कोई सेल है, इसके अंदर there is a cell, this cell, इसके अंदर O2 है, O2 है, O2 है, O2 है, और यहाँ पे O2 की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है. ऑक्सीजन ओके ज़्यादा है. क्या होगा? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा. दिस इज़ योर डिफ्यूजन. बट हमेशा इट्स नॉट एट ऑल लाइक दैट कि हमेशा इट हैज़ टू क्रॉस दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन. नो. ओके, फॉर एग्जाम्पल कोई पर्टिकुलर सेल है, इसके अंदर
इसके अंदर ग्लूकोज इस साइड में थोड़ा सा ही है और इस साइड में ग्लूकोज ज़्यादा है। तो इस प्रोसेस को भी वी विल कॉल एज डिफ्यूजन, ठीक है, इसे भी हम डिफ्यूजन बोलेंगे। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि वो हमेशा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी, नहीं। बट इफ़ वी टॉक अबाउट द केस ऑफ ऑस्मोसिस, तब इन द केस ऑफ ऑस्मोसिस जब वो पानी का मूवमेंट होता है, इन दैट केस उसे ये सेमी परमेबल सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन को पास करना ही पड़ेगा, ठीक है। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं, हमें अगर डिफ्यूजन वही होता है जब वो सेलेक्टिवली परमेबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा तभी होगा, नहीं, ओके। वो सेल के अंदर भी अगर कोई एक पर्टिकुलर जगह पे किसी चीज़ का कंसंट्रेशन कम है और एक जगह कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वहाँ से भी हायर टू लोअर जाएगा। बट इस वे व्हेन वी टॉक अबाउट द केस ऑफ ऑस्मोसिस, उसमें ऐसा नहीं होता है। इन द केस ऑफ ऑस्मोसिस उसे इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना ही पड़ेगा। गॉट इट? श्योर? ओके। सो आई होप टिल here you don't have any problem, right? पक्का? So basically this was only the introduction video. From the next class we'll start the topic nutrition, okay? Till here I hope all the thing has been crystal clear, I guess, right? So till then, stay connected and bye bye guys.